India lifts the World Cup for the first time in its history. India lifts the Women's Cricket World Cup for the first time in its history, and that is obviously has made the entire country happy. And the team obviously deserves all the credit that they have worked very, very hard for this. There have been many stories where the individual cricketers and the families have sacrificed a lot to achieve this feat that we see today. India is a country where cricket is not just a sport but a mania. However, this idea that women can excel in sports, be it cricket, be it tennis, be it badminton or chess or any of other sports where the competition is intense and tough, obviously is something which we should be looking into. For UPSC, this is what exactly is relevant, that the woman in sports and what government of India is trying to do to increase their participation, to give them voice, to make the level field equal. वेलकम टू श्रीराम आईएएस, माय नेम इज सौरभ और आज हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे महिलाओं की स्पोर्ट्स के अंदर जो परिस्थिति है, स्थिति है, कितनी बेहतर होती जा रही है. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. दिस इज द टिप of the iceberg that we see. There are many good athletes in India who get the fame, the wealth, the status. In a way, they promote the cause of woman empowerment. ऐसे समाज के अंदर जहां महिलाओं को सिर्फ चौका बर्तन और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता रहा हो, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लास सीलिंग्स हैं वो टूटती रहनी चाहिए. चाहे वो पीटी उषा हो, या फिर वो साइना मिर्जा हो, या फिर साइना नेहवाल हो, या फिर वो मैरी कॉम हो, बीट एनी स्पोर्ट, बीट बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस, लॉन्ग जंपिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, यू नेम इट, एंड देन यू विल सी कि वुमन आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल. एक ऐसा जेंडर जो समाज का 50% पार्ट है, पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन जस्ट 50 years बैक द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन in the Olympics, if you see, in the last 30-35 years, was that abysmal, 2.2%. From there, we have arrived at 47% of the Tokyo Olympic of 2020. In India, that the ratio of men to women athletes in the Olympics was 54 to 46%. That's a great feat for a country which is seen as traditional in all sense. And India is still a very traditional country. खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. This is the country from where we are coming from. And then you see the women, they are being now, this field is being ripped open for them to show their mettle, to simply exhibit their strength, their stamina, their perseverance, their competitive spirit. और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक विजनरी जो पॉलिसी है उनका रहा है, प्रोग्राम्स का रहा है. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन यूपीएससी. यू नीड टू मेक मेनी थिंग्स राइट अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर बढ़े. फॉर एग्जाम्पल, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट द यंग एज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And girls are not allowed to move away from their homes because of cultural reasons. तो कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे यंग एज में? उसके लिए कल्चरल शिफ्ट की बहुत जरूरत है. फेडरेशन एंड क्लब्स उनके लिए सेटअप करना, डेडिकेटेड प्रोग्राम्स उनके लिए लेना, इक्वालिटी को प्रमोट करना स्पोर्ट्स गवर्नेंस के अंदर. वी हैव सीन इन द लास्ट 2 years व्हाट हैज हैपेंड इन द रेसलिंग गेम और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जहां एक बहुत ही प्रोमिनेंट एथलीट ने सिटिंग प्रेसिडेंट जो उस वक्त के थे रेसलिंग फेडरेशन के, उनके ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन के चार्जेस भी लगाए. तो बहुत जरूरी है कि स्पोर्ट गवर्नेंस को इंक्लूसिव बनाया जाए जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से. University research and innovation for enhancing performance is very, very critical. Then campaigns for promoting specific sports or recognizing and popularizing success of women athletes. तब जाके जो desired cultural institutional change है वो समाज के अंदर होता है. And the government's policy in this regard are very, very important. For example, the National Sport Policy 2001,
जिसका लेटेस्ट जो इटरेशन नई पॉलिसी आई है खेलो भारत नीति 2025, उसमें इस बात को इटरेट किया गया है कि वुमेन आर एज ए प्रायोरिटी ग्रुप, एंड दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो एजुकेशन के अंदर इन बिल्ट ये मैकेनिज्म स्पोर्ट का लाया गया है। नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच मैंडेट्स एटलीस्ट 10% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन executive bodies. So sport is not just an arena which is used for to promote soft power of the country. ये एक ऐसी फील्ड है जहां महिला सशक्तिकरण सही मायनों में किया जा सकता है और किया जा रहा है। इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स भारत सरकार के, जैसे खेलो इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, 2014 के बाद उन्होंने इसको लॉन्च किया। ग्रास रूट जो टायर 2 टायर 3 टाउन्स, कस्बे, गांव, इनके अंदर स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करने में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले किया गया। इट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप of 6.2 lakh per athlete per year for identified female athletes. फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया 2019 में टू प्रमोट गुड लिविंग, जहां फिजिकल एक्सरसाइज जैसी जो कोर विषय है, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं लेकिन इंडियन सोसाइटी के अंदर इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको सेंटर स्टेज में लाया गया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट, कोचिंग, न्यूट्रिशन, एक्सपोजर टू अब्रॉड एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी अपनी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे वुमेन स्पोर्ट्स सेंटर्स एस्टैब्लिश करना, हॉस्टल्स, डेडिकेटेड हॉस्टल्स प्रोवाइड करना एक्सेट्रा। कल्चरल चेंज इसमें बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया। कल्चरल चेंज इज वेरी वेरी क्रिटिकल, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से अवेयरनेस बढ़ी। इसी का एक कंपोनेंट है बेटी खिलाओ, इनकरेज द गर्ल्स इनटू स्पोर्ट्स। मास कैंपेन सेलिब्रेटिंग वुमेन अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट, जैसे हैशटैग हर स्टोरी आर प्राइड, एंड दूरदर्शन एंड माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो शोकेसेस women athletes to inspire the next generation. And the level of inspiration that India has achieved, the level of success that we have achieved in the last few decades, it is unparalleled in Indian history at least. And we have seen in para athletes, just look at this picture. This is the testimony of what Indian woman can do. This is Sheetal Devi, one of the best in her trade, in her business. She's a woman. So in a way, women in sports not only talks about women empowerment or giving women agency or making sure that they get the representation or they get the fame or the status or the wealth. It is also very, very important about generating inspiration for the future generation of girls in India. स्पोर्ट का सिर्फ मायने फिजिकल फिटनेस से या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से नहीं होता, इट ऑल्सो यूनाइट्स द कंट्री। द एंटायर कंट्री वाज यूनाइटेड व्हेन द इंडियन क्रिकेट टीम वन द वर्ल्ड कप एंड वी वर ऑल इलेटेड। और देखने वाली बात थी कि पूरा स्टेडियम खचाखच वहां पे भरा हुआ था। बट यूपीएससी विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन अबाउट द वुमेन इन sports. There is a huge possibility. So that's why this lecture was primarily dedicated to this topic. I hope all of you liked it. And if you like the content, like, share, and subscribe. Thank you.